Bismillahirrahmanirrahim. So, today's topic is the compilation process, which is very important topic, and we'll show it practically today, which maximum students in the C have no idea about. I don't know why, but maximum students I ask, they do not answer me any question whatsoever. So that is why it's important that we start this session. This is our second class, but uh, new students added. So let us have a recapitulation and also do the practically the new things. So in a compilation process, we said what we said yesterday was what was your name? I just forgot. OS, huh? Yes, sir. OS, you can speak up in between because you have read about things. Ji. Okay. There were also the other guy. I don't remember. A couple of guys were there. Anyways, so we said that we write the code, whatever the code we write, we call it as a source code. Source code. And the source code, say for example, we write it in C or C++ or Java or maybe some other language. These Hmm. all languages are like English like, okay? They are File. high level languages, or even the you write in say assembly language, which is a low level language. But ultimately, you have to run it on a machine which Hmm. only understands the machine code. So we have to convert this source code into the object code. And there are a lot of steps which we do practically today. Those steps. Okay? Hmm. Hmm. So there are a lot of steps to go from source code to the object code. Right? The if we say overall diagram of it, and yesterday we also discussed it about the Java, why it is write once and run anywhere. And because we do not have to only convert this high level language into some kind of a machine language zero ones, but also as per the machine specific. It is an architecturally dependent code. It's a machine dependent code. We have to see what is the architecture of the CPU, what is the instruction set architecture, and everything what the CPU has. Because if I am having, this is the M1 machine, it's a MacBook Pro, the M1 machine is totally different than HP's Intel. I have another laptop on my side which is Intel. That processor is totally different architecture than the M1, right? So if you convert this code, you have to convert it as per the architecture of the machine also. So that means you need to have an assembler, not only just a compiler. Because compiler actually does what? It converts the source code into the assembly code. It converts that code into the assembly language code. We see it practically today. And later on, the assembler comes up and converts it into the machine dependent code which can run on a particular machine. We have discussed it yesterday also. So if you have the questions, you can ask me. This will get clearer soon, what I am saying. So that means if I write, for example, this is the VS Code, and we just file a new folder. We say open folder here, okay, and we create a new folder right now. Okay, maybe I say new new C folder, whatever that is. Create, open. Now the environment which we create is now the new C, and here, for example, I created one file. Maybe I call it my first.c. Okay. Now to do the coding in the C in the VS Code, I told you yesterday you need few things, right? Hmm. Uh, what else you need? Firstly, you need a compiler. Maybe Compiler. you use the GCC compiler, right? Hmm. Okay, and you also need the IntelliSense, that is C++ extension, which you do it here in the extension section, and also this run button, which will run our code, and this is the code runner. This is Code the runner. code runner. For this, I will recommend you to watch simple a video on a YouTube, which shows how to run C code. You will plug into the YouTube how to run C code in VS Code. Okay, how to run C programming in VS Code. How to compile C in a VS Code. Just write it in a code that will show you step by step. There are simple steps where we install the GCC first. If it is Windows, then environment variable will be set up. Then here in the extensions, we find the we find what we find in extensions. In the extensions, we find, for example, here the C, and /C++. This IntelliSense, right? You install it.
then you will have the code runner. Okay, this one, this guy, you will install this code runner so that you got this button to execute it without having any, you don't have to write any code in a terminal. So you can do it, but I will show today only terminal so that we understand how this process happens. So I will create firstly my C code. Okay, now first thing we do is we say hash include, and we see what is this hash include and all, and stdio.h header file. We'll create our own header file today also, and we got a main. Now you see I put up a main, it's giving me everything, and I press enter. It writes all the code, it writes all the function of the main. This is what IntelliSense is. It helps us in writing the code. This is done by this C++ IntelliSense, right, which I showed you. This C++, when you install this C++, this one IntelliSense, it will happen all these things. Like we do emmet, we have emmet in the VS Code, and I mean in the JavaScript and all, which helps in HTML code. Here we have the C++ IntelliSense. Okay. Now we have this code here, and we want to write something in it. For example, I am writing few things which we read later on also, but for explanation purposes I am putting up here. For example, I am putting up some symbolic constant hash define. Okay, and I say for example discount DISC is 20%. So I put up some discount 20%. I got couple of variables int a comma b. Then I am saying a equals to, for example, discount. Okay, and b equals to, say for example, discount, right? And I am putting up some comments here. I am putting up some comments. For example, I am putting up some comments. चलो कुछ प्रिंट करते हैं. ओके, करते हैं. चलो कुछ प्रिंट करते हैं. क्या ये कंप्यूटर को कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा ना, तो अपने लिए हमारे पास. So I am saying printf. Say for example, I am printing up the salam. Our favorite thing, that is the salam. We do \n to give it a new line, \n to give it a new line, enter. Okay, now this is a program we have where we have a comment. Okay, and we created a function printf. So we know when we write a function, any function you write, for example, okay, you write a function, for example, there's a function, it's the body of the function, write something in it, but you need call this function somewhere, right? So this is the call to the function printf. This is not the function definition. ये function हमने लिखी नहीं है अभी, ये function का call है. तो यानी कि printf function कहीं पे लिखी हुई है बाज़ाबिता. वो लंबा सा कोड होगा, जो कि उस कोड के अंदर क्या होगा कि आपका जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है, इट विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन. यानी कि उसको डिवाइस ड्राइवर चाहिए इस स्क्रीन के, एंड ऑल दैट, राइट. सो अब ये जो चीज़ है कि आप प्रिंटफ अपने लिखी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप कॉल कर रहे हैं प्रिंटफ को, तो वो डिवाइस ड्राइवर पे काम करना इन द बिगिनिंग, वो तो आप कर नहीं सकते. इसलिए आपको रेडीमेड दिए गए हैं चीज़ें, वो इस फाइल में है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ये क्लियर हो जाएगा जब हम अपनी बनाएंगे. तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एक फ़ाइल है बाज़ाबिता, जिसके अंदर आपको प्रिंटफ का कोड लिखा हुआ है, ठीक है. तो अगर आपको प्रिंटफ का कोड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे इसको कॉल कर सकते हो? तो इसका मतलब है जो फाइल आपके पास है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसके अंदर आपका प्रिंटफ का कोड है, ये फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है. इसलिए आप क्या करते हो काम, पहला काम, इससे पहले कि आप कंपाइल शंपाइल असेंबल करोगे, यू कॉल द प्री प्रोसेसर. सो पहला काम जो होता है वो किसका होता है? प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर के बहुत सारे काम है, मोटे मोटे में बता रहा हूँ कि पहला काम है कि जो हेडर फाइल्स आपकी है उनको इंक्लूड करे. इंक्लूड का मतलब है बिल्कुल उठा के पटक दे इसी फाइल के अंदर. अभी हम वो देखेंगे, विल सी इट, कि वो फाइल जो है ना, उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो साथ नहीं रखनी है इसको लिंक करने के. एक तो कि लिंकिंग करना वो अलग चीज़ होता है, वो उठा के जो भी इसमें माल है वो इधर डालना है, एज इफ कि जैसे आप ही ने लिखा है, ठीक है. ठीक हो गया. तो ये हो गया इंक्लूड का, कि ये कौन करेगा, मगर प्री प्रोसेस. क्योंकि अभी प्रोसेसिंग कैसे होगी आपको, तो अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करूंगा यहाँ पे, आई विल
फॉर एग्जाम्पल आई विल क्लोज दिस ऑप्शन. किससे आता है बंद, किससे होता है ऑप्शन एरर. वेट सेकेंड. सो अगर मैं ये फॉर एग्जाम्पल बंद करूँगा ना, ये फॉर एग्जाम्पल आई विल कमेंट दिस आउट. कमांड फॉरवर्ड स्लैश डैमेट कमांड जी, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करें विंडोज में, कमांड फॉरवर्ड स्लैश टू कमेंट इट आउट. ये मैंने कमेंट किया. इफ आई गिव इट ए गो, आई वांट रन इट दिस, राइट, आई वांट टू रन दिस कोड. ओके, व्हाट विल टेल मी एग्जैक्टली कि भाई ये प्रिंटफ है क्या. देखो यहाँ एरर ना, एरो है ना, यहाँ पे दिख रहा है. ये Yes, कह रहा है प्रिंटफ क्या चीज़ है, मतलब है क्या है, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा. क्योंकि प्रिंटफ की जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर है. आपने वो बंद कर दी, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होगी. तो मतलब ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल है उसमें जितना भी चीज़ें हैं वो उठा के इसी में डालनी है. किस में, इस हमारी वाली फाइल में. तो हमारी वाली फाइल बड़ी बनेगी और उसमें वो प्रिंटफ की फंक्शन होगी. यानी कि उसका मतलब है कि जब आप कॉल करोगे वो प्रिंटफ फंक्शन है आपके पास. ठीक हो गया. इस समन सर ये एज ए कंस्ट्रक्टर फिर काम करता है उधर पे. एक सेकंड, यूनुस नज़ीर क्यों भाग रहा था, एडमिट. नहीं, कंस्ट्रक्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है. ये सिंपल ये चीज़ है. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुने यहाँ पे है, मैं अभी दिखाऊंगा ना ये प्रैक्टिकली तो आपको समझ आएगा. ये ऐसा काम करता है. देखिए क्या करता है काम. आपकी ये फाइल है, ठीक है, इसमें आपने 1 2 3 लाइन्स लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और एक और फाइल यहाँ से है उसमें 2 लाइन्स लिखी हुई है. मैं कहता हूँ कि ये मैं इंक्लूड करूँगा इसमें, जिसमें मानो ए बी इसमें है और इसमें 1 2 3 था. तो ये ए बी इंक्लूड होके इसी फाइल में आ जाएगा और ये कुल मिला के 10 लाइन्स बन जाएंगी कोड. ठीक हो गया, सिंपल. ये करता है इंक्लूड. लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोसेस करूँ, यानी कि इसको कंपाइल शंपाइल करूँ, उससे पहले ये स्टैंडर्ड इनपुट आउट हेडर फाइल का सारा माल है वो यहाँ आना चाहिए. ठीक हो गया, बात समझ आई. हाँ जी, गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग. नहीं आ रहा समझ. yes sir, आ गया. अच्छा, दूसरी बात है कि हैश डिफाइन सिंबॉलिक, इसे बोलते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट. यानी कि जो कॉन्स्टेंट 20 है, वेरिएबल हो गया, इसका चेंज होगा नाम. कभी 20, जैसे ए में कभी 20 डाला, कभी 30 डाला, तो ये वेरिएबल हो गया. लेकिन डिस्काउंट में हमेशा 20 रहेगा. सो इट बिकम्स डिस्काउंट इज एन कॉन्स्टेंट. दैट इज़ वाई आई रोट इट इन कैपिटल, क्योंकि कॉन्स्टेंट का यहाँ पे है कि हमें कन्वेंशन है कि हम वी शुड राइट इट इन कैपिटल. तो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट जो है, ये जहाँ जहाँ प्रोग्राम में डिस्काउंट होगा वहाँ डिस्काउंट नहीं 20 चिपकना चाहिए. ठीक है. So ये कौन करेगा, प्री प्रोसेसर. सो इससे पहले कि आप ए में ये डालोगे डिस्काउंट, तो आपको वहाँ डिस्काउंट की जगह ऐसे आना चाहिए 20. ठीक है. तो ये कौन करेगा, प्री प्रोसेसर. वी विल सी इट इन अ मिनट. उसके बाद तीसरा चीज़ जो है कि कमेंट्स, ये आपको अपने सोर्स कोड को समझने के लिए थे, है ना. कंप्यूटर्स क्या शायद करूँ, प्रोसेसर को क्या करना है, इसको कुछ नहीं. सो इन कमेंट्स को निकाल बाहर करना है. इन कमेंट्स को निकाल बाहर करना है. बात समझ आई. ठीक है. सो आई विल गो टू द टर्मिनल, आई विल से क्लियर. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा इसमें कंपाइलर है, जीसीसी है. अगर हम कहेंगे माइस वर्जन, मैं देखूँगा मेरे पास कौन सा है, ये सी लैंग होगा. तो इसमें आप देखोगे कि एप्पल सी लैंग वर्जन मेरे पास है जीसीसी का. जो कंपाइलर मेरा है नया वाला है, सी लैंग है 15.0.0. इसको करने के लिए मैं या तो जीसीसी इस्तेमाल कर सकता हूँ. डायरेक्ट कमांड के लिए करना मैं कमांड लाइन से करूँगा, या तो मैं सीधे जीसीसी लिखूँगा, या मैं सी लैंग लिखूँगा, या मैं सी लिखूँगा. तीनों में से आप जो भी लिखोगे वो चलेगा. ठीक है. ये तीनों एक ही बात होगी, क्योंकि ये जीसीसी का ही वर्जन है. एज यू कुड सी, मैंने कहा ना जीसीसी का कौन सा वर्जन है यहाँ पे. ठीक है. इसने कहा कि भाई सी लैंग है. तो आप कमांड के लिए इसको या तो आप जीसीसी लिखोगे, या आप शॉर्ट में सीसी लिखोगे, या आप सीधे सी लैंग लिखोगे जो है. ठीक है. लेकिन पहले हम आते हैं, वी विल कम टू द ये एक मिनट. नहीं, पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड आई विल डू हियर कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि पहले जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस करते हैं उसमें पहला स्टेप जो मैंने कहा किसका होता है. हाँ जी,
प्री प्रोसेसर। तो पहले प्री प्रोसेसिंग होगी, कोई शायद आ गया कि हाँ, सहरानदार हैज कम अप नाउ। आमिर इकबाल शाही, क्या लेट आ गए ये लोग? स्टॉप शेयरिंग। यूनुस नज़ीर शुड ओपन अप द कैमरा। हाँ अच्छा। सहरानदार ओपन अप द कैमरा प्लीज़। ओके, आप थोड़े से लेट आ गए, लेकिन वी विल ट्राई दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स कम अप हियर कि पहला चीज़ जो होता है वो क्या होता है? प्री प्रोसेसर का। जिसको थोड़ा सा मिस हो गया वो रिकॉर्डिंग देखेगा, आई विल सेंड द लिंक ऑफ द यूट्यूब। अब जो प्री प्रोसेसर आपका है, उसके बाद जब प्री प्रोसेसर किसके ऊपर काम करेगा? आपके सोर्स कोड पे, यानी कि जो आपका पहले आप सोर्स कोड लिखोगे, ठीक है ना, यू विल राइट द सोर्स कोड, दैट इज़ जैसे मैंने अभी लिखा first.c, जो मेरा first.c प्रोग्राम था उसको मैंने सोर्स कोड लिया। तो पहला काम जो है, जो पाउंड साइन से आपने चीज़ें लिखी हैं, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी कि वो कॉल है प्री प्रोसेसर को कि भाई साहब आप मेरे लिए काम करके दो। तो वो जब काम करके देगा तो वो क्या करेगा, वो ये बताएगा मुझे। वो हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा, ठीक है ना, कमेंट्स को रिमूव करेगा, और बताया था मैंने सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को चिपकाएगा वहाँ पे, जहाँ जैसे मैंने डिस्काउंट लिखा था वहाँ 20 चिपकाएगा उनकी जगह, ठीक है। एंड जो फाइल यहाँ पे बनेगी वो बनेगी आपकी first.i या first.ii। ये आपकी बनती है प्री प्रोसेसर वाली फाइल, जिसने ना ये काम किया, जिसने वो सारा काम किया। इसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास first.c है यहाँ पे, यस सर। ध्यान दें। तो या तो मैंने कहा कि मैं GCC कहूँगा, या मैं कहूँगा कमांड के लिए CC, या मैं कहूँगा CLang। तीनों में से तीनों चलेंगे, तीनों एक ही बात है, ठीक है। CC शॉर्टकट है, CLang वर्जन है, GCC पेरेंट है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आप क्या लोगे। आप GCC पहले कहते हैं, स्टार्ट में करेंगे। प्री प्रोसेसर किस फाइल को आप करोगे? सोर्स कोड। लेकिन अगर हमने सोर्स कोड डायरेक्ट लिखा तो ये एक स्टेप में सारे स्टेप्स करेगा। इट विल डू ऑल, जैसे ना ये बटन काम करता है, ये सारे स्टेप एक साथ करता है। तो इसलिए इसको बताना पड़ेगा पहले -e। जो -e आप कह रहे हो उसका मतलब है कि आप सिर्फ प्री प्रोसेसर करो, अब प्री प्रोसेसिंग करो। क्या करो? प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। और प्री प्रोसेसिंग किस फाइल को करोगे? जिसका नाम है first.c। सोर्स कोड जो है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो आउटपुट आएगा ना, वो भी पकड़ सकते हैं हम किसी में, वो भी हम किसी में पकड़ सकते हैं। मैं उसको कहूँगा भाई साहब जो आप ये वो आउटपुट अगर पकड़ना है ना तो -o कहो उसको। -o मीन्स आउटपुट इस फाइल में डालो। मैं इसको कह रहा हूँ GCC को कि कंपाइलर साहब आप एक काम करो, आप सिर्फ प्री प्रोसेसिंग करो। -e का मतलब क्या है? प्री प्रोसेसिंग। ओनली प्री प्रोसेसिंग करो। किस फाइल को? first.c को, जो सोर्स कोड है, और उसको जो आउटपुट है ना वो इस फाइल में डालना, जिसका नाम मैं रखूँगा से फॉर एग्जाम्पल first.i, ठीक है। आई प्रेस एंटर एंड यू विल सी हियर देयर आर सम errors. Where is the error? Firstly there is an error. Where is the error? क्योंकि इसने कहीं पे एरर क्या बता रहा है? सिंटेक्स एरर नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन टर्मिनेटर के पास एरर है कहीं पर। डिस्काउंट के बाद तो नहीं रहना? नो उसके बाद नहीं है कुछ, वो ठीक है। सर इंट मेन में रिटर्न 0 आ रहा है ना, वो तो ठीक है। इसमें क्या एरर है? हैश डिफाइन डिस्काउंट मैंने 20 कर दिया, ठीक है। सेव इट। पहले देखते हैं रन होता है कि नहीं है, ठीक है ना। हमने studio.hb डाल दिया ना वापस, नहीं तो काम कर रहा है, तो एरर तो है नहीं कुछ, यानी कि इसी में हमने लिखने में कुछ गड़बड़ किया। मैं कह रहा हूँ GCC आप करो, ठीक है। वी और इन द इसका ना फोल्डर का नाम क्या है? न्यू सी, वो ठीक है, न्यू सी के ऊपर हम हैं। GCC को मैं क्या बता रहा हूँ कि आप क्या करो, कैपिटल E लिखना है, कैपिटल E लिखना है। फाइल का नाम है first.c, और उसको मैं कह रहा हूँ कि -o आउटपुट आप डालो किस में? सर ये कैपिटल O मत ना? नहीं ये सिंपल आउटपुट इज सिंपल, सिर्फ E लिखना है कैपिटल। आउटपुट किस में डालो? first.i में, ठीक है।
सो इट्स वर्किंग। कुछ हमने गलत लिखा था यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो हम्म, अब देखो फर्स्ट डॉट आई आ गया। यस सर। इसमें क्या है? इसमें कम ये सर प्री प्रोसेसर में जो कोड तो आ गया क्या हमारा, होगा उसमें, क्या होगा, हुआ होगा, क्या हुआ होगा बताओ। सर एक तो कमेंट्स हमारा उड़ गया होगा। वेरी गुड। चलो कुछ प्रिंट कुछ नहीं होगा वहाँ पे, खत्म। यस सर। और और यहाँ सर लाइन नंबर 6 7 के बारे में बताओ। सर 20 20 में जाएगा। हाँ 20 जाएगा। कोई और आ गया, उमर बशीर। ओके 20 होना चाहिए उधर, है ना। यस सर। और भी एक चीज़ होगा, और सर और स्टूडियो की फाइल इंक्लूड हो जाएगी। वो सारा इसी में अंदर होगा। वो सब भी बहुत बड़ी फाइल है। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे, ये बहुत लंबी चौड़ी फाइल जो आपको दिख रही है ना, ये Yes, sir. stdio.h इंक्लूड होगी हमारी फाइल के अंदर, ये सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए हम जाते हैं नीचे। ये सारी फाइल जो है ना, ये किसकी, ये कौन सी फाइल है? सर हैश इंक्लूड स्टूडियो ये डॉट एस टी हैश नहीं, stdio.h है। एच उसमें अगर आप ढूंढोगे ना घर में, इसमें ढूंढना आराम से, प्रिंटर भी वो इसमें होगा फंक्शन, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊंगा और हमारी फाइल अपनी भी होगी ना, जो ना हमारी फाइल है वो ये है, ठीक यस है, सर। यहाँ से, ठीक है। उसमें कमेंट ख़त्म किया इसने यहाँ पे। यस सर। डिस्काउंट में क्या डाला हम देखेंगे, दोनों को यहाँ पे देखेंगे। सर 2020। हाँ ये फर्स्ट डॉट सी, यहाँ पे फर्स्ट डॉट आई, ये फर्स्ट डॉट सी ये है, ठीक है। इसमें एज को डिस्काउंट था, इसने क्या डाला, Yes. एज को 20, 20 बीस को डिस्काउंट था, इसने क्या डाला, 20 को 20। तो जो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट थे वो चिपकाए, जिधर अगर 1000 जगह है 1000 जगह चिपकाएगा, ठीक है। और जो एक कमेंट था वो गायब है। गायब है सर। और जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसको अटैच किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट करूंगा, अगर मैं इसको कमेंट करूंगा, ठीक है ना, हाँ, यहाँ से खत्म होगा सारा। तो मैंने खत्म इसको सर। कमेंट किया। एक और अकाउंट FF Max, व्हाट इज दिस? एनीवेज लेट अस हैव एवरीबॉडी टुडे, लेटर ऑन वी विल सी हु इज दैट एंड हु इज नॉट। मैं इसको अगर फिर से यही करूँ अब काम, मैं आई विल प्रेस द अप एरो बटन। मैं अप एरो बटन दबा रहा हूँ तो पुरानी कमांड वापस आ रही है, ठीक है। अब ये फर्स्ट डॉट आई चाहे आप डिलीट करें या चाहे ओवरराइट करें, चलो मैं डिलीट ही कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। लेट मी Right. डिलीट, मूव टू ट्रैश, खत्म। अब आई विल, इट विल क्रिएट न्यू फर्स्ट डॉट आई, यस ठीक सर। है। व्हेन आई सी फर्स्ट डॉट आई, इट वोंट हैव द stdio.h इन इट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि वो तो इंक्लूड ही नहीं किए। इनफैक्ट जो वहाँ पे जो माल था ना उसमें जो ये था, प्रिंट अप के लिए। ये एज ए कमेंट हो गया ना, उसने वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है। और डिस्काउंट की जगह 20 डाल दिया। और यहाँ पे जो प्रिंट ऑफ है, सॉरी बाकी तो बाकी सेम ही है, ठीक है ना। राइट सर। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँगा, क्या ये चलेगी ये फाइल? नो सर। नो सर। ये बताइए प्रिंट ऑफ क्या चीज़ है। प्रिंट ऑफ क्या चीज़ है? बिल्कुल इसलिए सर। हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा और हम इसको Right. वापस अप एरो करके वापस नहीं बनाएंगे। तो इसने वो अब कोड इसमें डाल दिया। लेकिन बात मज़े की ये है कि ये क्या डाल रहा है, स्टूडियो डॉट ये इसी कोड में डाल रहा है। किसमें? सर जो हमने लिखा उसकी दूसरी कॉपी बना के उसमें स्टूडियो डॉट एच का जो कोड है वो चिपका रहा है पहले, और लास्ट में अपना कोड। एग्जैक्टली, सोर्स कोड में। ये अपना कोड चिपका रहा है। हमें खुद भी कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं कि हम अपनी हेडर फाइल बना देंगे, ठीक है। देखने के लिए हम अपनी हेडर फाइल बना देंगे। और मैं एक काम करूँगा, इसको मैं बंद ही कर दूँगा फ़िलहाल, ठीक है, ओके। ताकि वरना मैं ही बोझ नहीं किया। मैं नया बनाऊँगा फाइल, होगी वो ख़त्म, वो ख़त्म हो गई। वो इसमें फर्स्ट डॉट आई में वो ख़त्म हो गया ना, stdio उसने इंक्लूड नहीं किया। अब यस सर। मैं यहाँ पे अपनी हेडर फाइल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ माई हेडर डॉट एच, ठीक है। अभी डरने वाली बात नहीं कि माई हेडर, ये क्या खबर, क्या है हेडर, ये कुछ है नहीं। इसमें हम कॉमन चीज़ें रखते हैं। हेडर में क्या रखते हैं, कॉमन चीज़। देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा हेडर फाइल किस में लगती है। क्योंकि हम जब करते हैं ना फिर कोड, हम बड़े प्रोग्राम्स पे काम करते हैं। सर मेरे वो पास तो सर फिर हो गई ना सर चोरी। अगर हम वहां से वो हेडर फाइल का जो प्रोग्राम था ना, कम प्री प्रोसेसर में उठा के अपनी फाइल में अपना नाम डाल के उधर पे चिपका देंगे, बन गई दूसरी हेडर फाइल अपने नाम की, फिर उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो कौन सा मसला है, वो भी कर सकते हैं। नहीं मैं कहता हूँ हेडर फाइल किस लिए लगती है असल में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 फाइल्स हैं, क्या है, इसमें इस तीनों में कोई कॉमन चीज़ है। इसमें भी वो है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में कॉमन कोई चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी वो फंक्शन लगती है, यहाँ भी फंक्शन लगती है, यहाँ भी फंक्शन लगती है। मैं ना तेरी तरह फिर देखें, यस सर। इमेजिन मेरे पास ये फंक्शन 50 बार है, तो ये फंक्शन कितनी बार रखनी है? 50 बार। जैसे प्रिंट ऑफ आपने लिखा, अब आपको 50 फाइल्स हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, 50 बार प्रिंट ऑफ की फंक्शन आपको खुद लिखनी थी ना।
अभी आप प्रिंटफ की फंक्शन नहीं लिख सकते हो क्योंकि आप बिगनर हो और वो उसमें डिवाइस ड्राइवर्स और उसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कोई आपकी अपनी फंक्शन, आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, कॉलेज प्रोजेक्ट कोई कर रहे थे और आपने उसमें 50 फाइल्स हैं, 50 फाइल में एक फंक्शन इस्तेमाल हो रही है, 10 फंक्शन इस्तेमाल हो रही है, वो सब में हो रही है, ठीक है। आप वो फंक्शन सिर्फ एक ही बार लिखोगे इस हेडर फाइल में और जिधर चाहिए उसको इंक्लूड करो, वो चिपकाएगा उधर, है ना। राइट सर। तो कोड रीयूजेबिलिटी आ जाएगी ना, कोड रीयूजेबिलिटी। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपका, आई विल शो यू। देखिए ये जो हेडर फाइल है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिख ली। मैंने यहाँ पे क्या लिखी, एक फंक्शन लिख ली मैंने यहाँ पे। एक फंक्शन है सम फंक्शन मेरे पास क्या है, ये मानो रिटर्न करती है एक इंटीजर। मैं फंक्शंस बाद में पढ़ाऊंगा, बस कॉन्सेप्ट के लिए मैं दिखा रहा हूँ। इंट सम, थोड़ा सा आइडिया होगा ही आपको फंक्शंस का, तो लेकिन मैं फंक्शंस बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से। इंट सम, यहाँ पे इंट ए कामा इंट बी, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन कुछ नहीं करती हैं, ये बस एक चीज़ करती है, ये इसको रिटर्न करती है वापस। ये रिटर्न करती है RETURN a प्लस बी, इस a प्लस बी को रिटर्न करके देती है, बस और कुछ नहीं करती है। एंड आई विल हाईलाइट ऑल दिस एंड आई से शिफ्ट कमांड एंड डाउन एरो, option command and down, okay one second, let me copy this, option command and down arrow, नहीं हो रहा नहीं ऑप्शन, एक मिनट है, यस इट इज़ शिफ्ट ऑप्शन एंड डाउन एरो। आपके विंडोज़ में होगा शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो, इसे कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सम के बदले सब लिखा, ठीक है। अब मैं माइनस रिटर्न कर रहा हूँ। दो फंक्शंस मेरे पास है, दो फंक्शंस मेरे पास आ गई, एक सम और एक सब, ठीक हो गया। तो ये दो फंक्शंस मानो मेरे पास अब फॉर एग्जांपल 10 मेरे पास 50 फाइल्स है, 50 के 50 में मुझे सम एंड सब चाहिए। फिर मुझे लिखना है ना 50 के 50 फाइल्स में सम और सब। अब मानो ये सम या ये कोई फंक्शन है, इसमें 100 लाइंस है, इसमें भी 100 लाइंस है, तो ये 200 लाइंस हो गए टोटल, ठीक है। अगर मेरे पास 100 फाइल्स हैं, उन हर एक फाइल में मेरे को ये ज़रूरत है फंक्शंस, तो ये 200 लाइंस ऑफ कोड मुझे हर जगह लिखना पड़ेगा ना। इस चीज़ को जो कॉमन होता है ना, इसको हम हेडर फाइल में डालते हैं। किस में डालते हैं? हेडर फाइल। और फिर हम क्या करते हैं काम, हम जो अपनी फाइल जो होती है हमारी, जैसे first.c है, उसमें इंक्लूड करते हैं। उसमें क्या करते हैं? इंक्लूड। मैं वो std कर रहा हूँ फिलहाल बंद ही, ठीक है, क्योंकि वरना उसका क्लटर आ जाएगा ना, हैश इंक्लूड करूँगा मैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, एंगल ब्रैकेट नहीं देने हैं, क्योंकि एंगल ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड है इनपुट हेडर फाइल है, वो सिस्टम फोल्डर में है, जहाँ आपका ये प्रोग्राम लोड है ना, तो उधर जो डिफ़ॉल्ट हेडर फाइल्स का है वहाँ पे है, उसके पाथ दी हुई है। तो हमारी फाइल मगर इसमें है, सोर्स कोड में है ना, यहाँ पे जहाँ पे सोर्स कोड बनाया, तो इसको डबल कोट में लिखते हैं। डबल कोट का मतलब है जिधर मेरी सोर्स कोड है उधर ही फाइल है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? माई header.h। मैंने इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या करेगा, हमने पाउंड साइन को कॉल किया ना, पाउंड साइन, यहाँ पे पाउंड साइन मीन्स कॉल टू प्री प्रोसेसर जो मौजूद यह करान यह तुल तो चिपकाय सह कोड कत यथ मज। लेट अस गो हियर एंड डू द अप एरो टू गेट इट। मैं क्या कर रहा हूँ, GCC को कॉल कर रहा हूँ, जो मेरा कंपाइलर है, उसको बोल रहा हूँ कि भाई एक ही काम कर, तू सारा मत कर, रन मुझे नहीं करना, कंपाइल असेंबली मत कर, अभी सिर्फ एक काम कर, वो है -e क्या बोलते हैं, करो ओनली प्री प्रोसेसर। शाबाश। किसको? first.c को। और मैं कह रहा हूँ आउटपुट भी डाल ताकि मैं देख सकूँ किस फाइल में, first.i। तो जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने वो सम और वो सब अटैच किया, एज इफ कि आपने अपने ही कोड में लिखा है। ये हो गया ना ऐसे ही जैसे कि आपने इसी फाइल में लिखा है, ठीक है। अब अगर मुझे 50 फाइल्स होंगी तो मुझे मानो ये सम एंड सब मैंने भी छोटा लिखा ना, मैंने आई जस्ट रोट इट अ लिटिल बिट, ठीक है ना। फर्ज कीजिए इसमें 200 लाइन्स है, 300 लाइन्स है, मैं क्या फिर लिखने, आई हैव टू राइट इट ओनली वंस, एंड व्हेन आई गो टू द एनी फाइल आई नीड, आई विल ओनली इंक्लूड द हेडर फाइल लाइक दिस। जिस फाइल में मुझे ज़रूरत होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंक्लूड माई header.h, जहाँ मुझे ये फाइल ज़रूरत होंगी। अब मैं इसका नाम दूंगा स्पेसिफिक जो इसका होगा, से फॉर एग्जाम्पल ये मैथ की फंक्शंस थी, आई विल से हैश इंक्लूड माई math.h। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगा माई math.h इंक्लूड करूँगा, वो खुद आ जाएगा उसी फाइल में, क्योंकि प्री प्रोसेसर क्या करेगा, वो चिपकाएगा।
एक होता है मल्टीपल फाइल्स। जब आपको मल्टीपल फाइल्स पे काम, वो अलग चीज़ है। ये मल्टीपल फाइल्स नहीं है, ये एक ही फाइल बनाता है। फ़र्क समझ आई? ये समझे आप बात को, ये एक ही फाइल बनाता है। जो लेट आए वो वीडियो देखेंगे फिर, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ये इस सब का एक ही फाइल बनाता है। जो इसका ये जो फर्स्ट डॉट आए हैं ना भाई साहब, इसमें जो माई हेडर डॉट एच है और फर्स्ट डॉट सी है, ये कंबाइन करके हैं, एज इफ की जैसे कि आपने ये एक ही फाइल लिखी है, जैसे आप ही नहीं लिखा है, एज यू कुड सी हियर, राइट। और जब मैं ये हैश इंक्लूड भी बंद करूँगा, खुलाऊँगा, एंड आई विल डू इट अगेन, तो ये इसमें सारा डालेगा। इसमें हेडर फाइल का भी डालेगा, उसका std.h का भी डालेगा, और नीचे फिर आपका आएगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद इंक्लूड किया आपने, ये इंक्लूड किया ना, उसके बाद आपने अपनी हेडर फाइल। राइट सर। ठीक हो गया सर? तो वो चीज़ देखिए, माई हेडर डॉट एच जो है उसमें से भी माल इसने लाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डॉट सी है, ये तीसरा हो गया। आप देखो हैश 3 कह रहा है ना, ये 3 फाइल्स हो गई। एक फाइल थी आपकी हैश 1, कौन है? std.h। यस, है ना। यस सर। तो उसके वो कहाँ पे लिखा है इसने? ऊपर सर। यही ऊपर है। तो ये std.h है फिलहाल। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे इसको कौन है? सर ये माई हेडर, ये दिखे माई हेडर डॉट एच, ये टू पे फर्स्ट डॉट सी ही है, उसके बाद माई हेडर डॉट एच है क्योंकि टू इसमें डाल रहा है। उसके बाद इसके पास है फर्स्ट डॉट सी, जो आपका मेन अपना था। उसमें कमेंट भी हटा है, उसमें ये होता है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? यस सर। हेडर फाइल समझ में आ गया? तो सर अगर हम नीचे अब सम लिखेंगे, ये ए और बी का सम कर देगा। एग्जैक्टली, वी विल डू इट, डोंट वरी, वी विल डू इट। ठीक है। मिनिमम चीज आउटपुट ही वही नहीं फिलहाल, वी शुड डू इट, इनफैक्ट वी शुड डू इट, राइट। हमें करना चाहिए ना वो असल में। तो हम यहाँ पे करेंगे वो, ये ना फर्स्ट डॉट सी, और राइट, दैट्स गुड क्वेश्चन। हमें तो सम करना चाहिए। फिर हम कहेंगे सम इज इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इज इक्वल, मैं बाद में समझाऊंगा फंक्शंस वगैरह, फिलहाल हम लिखते हैं। अब इस परसेंट डी की जगह कौन होगा? मैं इस सम फंक्शन को कॉल करूँगा, उसको भेजूंगा फॉर एग्जांपल 4 और 2, ठीक है, और कामा इस परसेंटेज की जगह मैं किसको करूँगा कॉल? सब फंक्शन को। मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ ताकि आप दिखें। सब फंक्शन को कॉल करूँगा और उसको भेजूंगा मैं 4 और 2 फॉर एग्जाम्पल। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जब मैं सम, ये कॉल है, ये फंक्शन, अब मैंने यहीं पे लिखा है इसी फंक्शन में ना शॉर्ट के लिए, ये सम इज़ अ फंक्शन कॉल, इट विल कॉल टू द सम फंक्शन, जो कि इसमें लिखी थी हमने। इस सम फंक्शन कॉल होगी, 4 होगा कॉपी ए में, 2 होगा कॉपी बी में, फिर इनका सम रिटर्न करेगा। वो रिटर्न होके वापस आएगा उधर ही जहाँ पे है ना, यहाँ पे। और ये जो इवेलुएट होगा 4 + 2 इज हाउ मच? 6, वो 6 इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट होगा। इसी तरीके यहाँ पे पहले सब को कॉल होगी टू दिस, इस फंक्शन को। हालांकि ये हेडर फाइल में नहीं जाएगा क्योंकि ये चिपका होगा इसी अपनी ही फाइल में होगा ना। तो वहाँ पे 4 ए में जाएगा, 2 ए में जाएगा, इनको माइनस करेगा, बनेगा 2, 4 - 2 = 2, राइट। वो रिटर्न होके यहाँ पे इवेलुएट होगा। दिस विल इवेलुएट एज गुड एज इफ यू हैव रिटन हियर 2, इट विल बी लाइक दिस, एज इट इवेलुएटेड टू 2। तो ये 2 प्रिंट होगा इस परसेंट डी की जगह, ठीक है। मैं बाद में ये भी समझाऊंगा ये क्या कैसे हम करते हैं, फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये करना चाहिए उसके बाद काम। अभी तो हम प्री प्रोसेसर पे ही हैं, अभी हम तो रन पे आए ही नहीं है, ठीक है। बट इन एनीवेज इफ यू वांट टू रन इट डायरेक्टली, सो इट शुड गिव अस सम इज 6, सब इज 2, ठीक है। दिया ना इसने। लेकिन अभी हम पहले स्टेप पे थे, हमें अभी ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेट मी क्लियर इट। अभी हमने एक काम किया कि हमने प्री प्रोसेसर किस कमांड से किया? जीसीसी को कॉल किया, वो कंपाइलर है, मगर -e कैपिटल लिखना, स्मॉल नहीं लिखना, उसको उससे किया हमने। और वो फिर आउटपुट किस में डाला? आई में, फर्स्ट डॉट आई। तो इसमें फिलहाल प्री प्रोसेसर, जब हम यहाँ पे आएंगे, ये प्री प्रोसेसर हो गया, फर्स्ट डॉट आई बन गई। क्लियर। उसके बाद जो हम कंपाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं? कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन में क्या हम करते हैं काम? कंपाइलर का काम है, जो कंपाइलर आएगा यहाँ पे, द कंपाइलर कैन बी योर GCC और G++ और एनी टर्बो सी, वर्बो सी, जो भी ना आपके हैं आज तक आपने सुने होंगे, ठीक है। इट विल कन्वर्ट दिस, जो प्री प्रोसेसर कोड होगा, ये इस पे काम करेगा, प्री प्रोसेसर कोड पे।
ठीक है ना, जो प्री प्रोसेसर ने कोड दिया जिसमें कमेंट्स हटे हैं, हेडर फाइल्स लगी हैं और वगैरह वगैरह, वो हैश डिफाइन वगैरह वो चीज़ें आई हुई हैं, उसके ऊपर अब कंपाइलर काम करेगा. एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द असेंबली लैंग्वेज. इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? Assembly It language. converts the code into first dot s. S means assembly या ASM भी कभी आता है. So first dot s, लेकिन हमारे केस में first dot s आएगा. first dot s आएगा, यानी कि वो असेंबली में कन्वर्ट करेगा इसको. किस में करेगा कन्वर्ट? Assembly. तो हम इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे हमने किया फर्स्ट डॉट आई. अब Yes, हम sir. मैंने कहा ना, या तो GCC आप कॉल करोगे या किसको कॉल करोगे, CC को या या CLang. सी लैंग को. ये एक ही मसला है, जो भी आपकी मर्जी है. ठीक है, तो अब Yes, sir. जिसे हम सी लैंग को कॉल करेंगे. अब मैं किस किस पहले क्या देना पड़ेगा, जैसे मैंने इस वक्त First दिया था. dot I. देखिए, अगर मैं यहाँ पे आप देखोगे, पहले मैंने फर्स्ट GCC किया था -e, है ना. Yes, sir. अब पहला चीज़ है कि अब मुझे प्री प्रोसेसिंग हो गई. अब मुझे क्या करना चाहिए? Compile. Compiler. कंपाइल में कन्वर्ट किस में करना है? असेंबली में. Assembly. उसका डॉट क्या बनेगा? S. सो यू हैव टू यूज द कैपिटल S. यू हैव टू यूज व्हाट? Right. मैं इसको बता रहा हूँ GCC को, भाई साहब तो कंपाइल करके मुझे असेंबली कोड दे. लेकिन किस फाइल पे काम होगा? First dot I. वेरी गुड. नॉट फर्स्ट डॉट सी, फर्स्ट डॉट आई पे काम होगा. ठीक है. इनफैक्ट अगर हम फर्स्ट डॉट सी पे भी काम करेंगे ना, ये करेंगे प्री प्रोसेसर तो असेंबली इक्वट, ये फिर भी काम करेगा. इसके पास दोनों पावर होते हैं. हाँ, ये दोनों करेगा. ये क्योंकि असेंबली तभी होगा ना जब प्री प्रोसेसर होगा, वो तो मुमकिन ही नहीं है. तो इसलिए अगर आपने एस किया तो वो पहले पुराना वाला करेगा, वो पहले पहला स्टेप ज़रूरी करेगा वो. क्योंकि दूसरा कैसे होगा जब तक आप 10th में कैसे पास हो गए जब आपने 9th नहीं किया. ठीक है ना. Nine. Right. तो जब हम 10th का कुछ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये 9th का भी करके देगा पहले. तो फर्स्ट डॉट आई पे काम होगा. फिर मैं कह रहा हूँ इसको, अगर मैं नहीं भी कहूँ ना यहाँ पे, somebody has come up again, दानिश बशीर. एनीवेज, अगर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट डॉट ये क्या हो गया? First dot I. First dot I को. फर्स्ट डॉट आई एंड आउटपुट डालेगा ये किस में? फर्स्ट डॉट एस में. ठीक है. ये क्या होता है? -o का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ जल्दी से फटाफट. Output, sir. अगर आप नहीं भी लिखोगे ना, ये मत लिखो, ये फिर भी खुद बनाएगा ये फाइल. चाहे आप असल में हम -o इसलिए लिखते हैं कि अपने नाम का हम आउटपुट लिखेंगे. ठीक है. ये शुन जरूरी मतलब फर्स्ट डॉट एस बस बदल क्या नाम बता ना या बाय असेंबली कोड. Right. मतलब वो अपनी मर्जी है. लेकिन अगर हम नहीं करेंगे ना तो ये इसको फर्स्ट डॉट एस में बनाएगा. इफ आई से एंटर, इट विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट डॉट एस. Yes. अगर आप देखो कि फर्स्ट डॉट एस आपके VS कोड ने पहचाना कि भाई साहब ये ASM कोड है, ये असेंबली कोड है ना. इफ़ यू सी इट, इट्स नाउ असेंबली कोड. आप देखो इसमें. ठीक है. बिल्कुल sir. ये Assembly निमोनिक्स आ गए ना असेंबली कोड. code. Yes, sir. ये स्टेप सेकंड है आपका असेंबली कोड जो है. सलाम यहाँ पे प्रिंट करना है वगैरह वगैरह, वो चारे यहाँ प्रिंट वो फंक्शन जो भी है ना आपकी, वो सब कॉल हो रही है. असेंबली का कोड है, मुझे ये समझाना नहीं है, लेकिन ये स्टेप सेकंड हो गया. ठीक हो गया. तो यानी कि अब हम आए असेंबली कोड पे. तो यानी कि पहले आपका जो था सोर्स कोड था. सोर्स कोड क्या था? फर्स्ट डॉट सी. First dot C. उसके ऊपर किसने काम किया? Preprocessor ने. प्री प्रोसेसर ने उसको क्या बनाया? फर्स्ट डॉट First dot I. आई. फर्स्ट डॉट आई जो है, या डबल आई भी बनता है किसी आदों में. तो व्हाट इज दैट? इट इज़ अ प्री प्रोसेसर कोड. Right. जल्दी बताओ प्री प्रोसेसर कोड में क्या होगा, फटाफट बताओ. उसमें हेडर फाइल इंक्लूड होगी. इंक्लूड समझ में आ गया? इंक्लूड समझ में आ गया. Include होगी और comment हट जाएगा. ये याद रखना, लिंकिंग अलग चीज़ है. अलग चीज़ है, इंक्लूड अलग चीज़ है. इंक्लूड का मतलब एक ही फाइल. एक ही फाइल में सारा कुछ. एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल. उसके बाद कंपाइलर आएगा, जो आपका होगा GCC हो, जी पर जो भी आपका है कंपाइलर है, वो कन्वर्ट क्या करेगा इस प्रोसेसर फाइल को इनटू Assembly. असेंबली कोड. अब आपके पास असेंबली कोड है ना, जी. तो फिर कुछ कर असेंबली कोड से कुछ कर Assembler. असेंबलर डेफिनेटली इसके ऊपर असेंबलर काम करेगा, क्योंकि असेंबलर ही है जिसको असेंबली कोड समझ आती है. जैसे आपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, तो वहाँ असेंबली कोड आप लिखते हो ना, तब जाके वो असेंबलर को देते हो. Right, sir. ना. सो दिस कोड हैज़ टू बी गिवन टू द असेंबलर. सो जो कि आपको पता नहीं होता था, अक्सर बच्चे कंपाइलर करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता भाई असेंबलर भी होता है वहाँ पे, क्योंकि असेंबलर ही है जिसको हार्डवेयर पे नज़र है. असेंबलर है जिसको किस पे नज़र है. Hardware. अब मुझे किस पे काम करना है, किस फाइल पे काम करना है मुझे? First dot S. फर्स्ट डॉट एस के ऊपर.
वेरी गुड। फर्स्ट डॉट एस के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये Right, कौन sir. करके देगा? Assembler. असेंबलर करके देगा। अब उसको किस में बनाना है, फिर वो क्या बनाएगा उसको? इट विल कन्वर्ट Binary. इट इनटू Bytecode. फर्स्ट डॉट ओ ऑब्जेक्ट कोड, Object code. ठीक है। इट विल कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट डॉट ओ विच इज ऑब्जेक्ट कोड बट बाय माइनस सी कमांड। यहाँ पे माइनस हमने क्या लगाया प्रीप्रोसेसर के वक्त? माइनस कैपिटल Minus ई। E. असेंबली कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया? कैपिटल Minus एस। S. Mine S. यहाँ माइनस स्मॉल सी, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे अब मैं इस असेंबली को पकड़ूंगा। आप जीसीसी कहे, सीसी कहे, जरूरी नहीं आप जीसीसी को आप सीसी भी कह सकते हो, ठीक है ना, या सी लैंग भी कह सकते हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? माइनस सी। C. पकड़ना किसको है? First dot S. फर्स्ट डॉट एस को। माशाल्लाह, यू आर गेटिंग। सर कैपिटल C है बड़ा C की नो, छोटा? स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये सी Small. स्मॉल है, बाकी दो कैपिटल है, ठीक है। अब फर्स्ट डॉट एस, फर्स्ट डॉट S. आप कह भी सकते हो माइनस ओ कि भाई साहब मेरे को ये आउटपुट दे दो, जुनैद उसका नाम रखो फाइल का, ये अपनी मर्जी है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट फाइल नाम रखो अगर प्रॉपर रखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल है या ऑब्जेक्ट डॉट ओ है, उसमें रखो, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये खुद ही क्रिएट करके देगा। करेगा. इट विल Right. क्रिएट फर्स्ट डॉट ओ, इट विल क्रिएट व्हाट? First dot O. हियर इज योर फर्स्ट डॉट ओ। Right, sir. बन गई ना फर्स्ट डॉट ओ? Right, sir. जब आप डायरेक्ट करते हो ना, ये अंदर से वही यही चीज़ें करता है, मगर इशू तो आउटपुट हाँ मगर करता है ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट ओ बन गया आपको, फर्स्ट डॉट। नाउ व्हाट इज फर्स्ट डॉट ओ? टेल मी। Object Sir, code. binary code. It's a binary code, so object code, but it is not runnable. It's not Runnable. because you may this is only one file ना, ये जो first dot o बन गया इस फाइल का बन गया। मुमकिन है आपको और भी लाइब्रेरीज थी, आपने मैथ लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी, आप मैथ का काम कर रहे थे, आपने मैथ डॉट एच इंक्लूड की हुई थी, उसकी फ़ाइल थी, या आपकी खुद की 2-3 फाइल्स थी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और अपनी फ़ाइल बनाई थी, से फॉर एग्जांपल उसमें मैं फंक्शंस रख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फन डॉट सी, ये फाइल मेरी थी, है ना। ये जो फन डॉट सी फ़र्ज़ कीजिए इसका कोड भी मुझे ज़रूरत है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है इसमें, फर्स्ट डॉट सी में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जो फन डॉट सी है वो फर्स्ट डॉट सी में इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और कोड है, ठीक है, और लेकिन वो मुझे ज़रूरत है यहाँ पे। मानो मैंने फन डॉट सी में एक फंक्शन लिखी, मैंने एक Function लिखी. माई फंक्शन, मैं लिखूँगा यहाँ पे वाइड माई फंक्शन, एक फंक्शन मैंने लिखी यहाँ पे, कोई भी ये पेरेंट्स, ठीक है, प्रिंटफ किस नाम से अलाउ करा माई फंक्शन, ठीक है। जी सर. इसको वीडियो क्या था, ओके। बस माई फंक्शन ना भाई ये कॉल करा मगर कत कमांड सी या फर्स्ट डॉट सी एस मज फर्ज कीजिए ये ठीक है, मगर यह ये मे इंक्लूड तर्म कहें। अगर बह ये इंक्लूड करा यह फाइल सह हेडर फाइल करा इंक्लूड ना करा, तेल बना मे ये हेडर फाइल, मगर यह अलग फाइल मान दपो तुम इस कौन बनाओ हेडर फाइल बनाओ कुनी फाइल बह समझाओ सह समझाओ मल्टीपल फाइल्स मज, ठीक है। तो मो मकसद वनस वन कि दैट मीन्स वी हैव मल्टीपल फाइल्स नाउ, वी हैव व्हाट, वी हैव मल्टीपल फाइल्स। गो मे ज़रूरत गो मेरे को ज़रूरत है भाई साहब, जो आप कह रहे हो कि ये रन क्यों नहीं होगा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मैंने अभी फर्स्ट डॉट ओ बनाया, ये इसका ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है। अभी माई जो मेरा माई फंक्शन जो थी माई क्या नाम था इसका, फन डॉट सी, अब फन डॉट सी का फन डॉट ओ भी बनाना है ना। इसी तरीके मेरे पास 1 2 3 4 पता नहीं कितनी फाइल्स होंगी, उन सब का अपना अपना डॉट ओ बनाना पड़ेगा, फिर उन सब को लिंक करना करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी पड़ेगी जो कि रन होगी। राइट सर, गॉट इट। सो इसलिए लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट स्टेप वी हैव इज द लिंकिंग, ओके। सो अब अगर आप लिंकिंग करना चाहते हो, बताओ मेरी जान, किस चीज़ को लिंक करोगे आप? ऑब्जेक्ट कोड जो बहुत सारे होंगे, अभी फिलहाल मेरे पास एक ही है, अभी मल्टीपल फाइल्स मत हैं no. अभी मेरे पास एक ही है, वो कौन है? फर्स्ट डॉट ओ। तो लिंकिंग के लिए मैं सिंपल जीसीसी को हूँ या सीसी को हूँ या सी लैंग को हूँ, मैंने कहा जीसीसी कि भाई आप क्या पकड़ोगे? फर्स्ट डॉट ओ, जनाब फर्स्ट डॉट ओ पकड़ोगे।
ठीक है, फर्स्ट डॉट ओ को आपने पकड़ा, ये फर्स्ट डॉट ओ कौन है, जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है। अब आप क्या करना चाहते हो, अब आप क्या Link. करना चाहते हो, लिंकिंग। तो उसके बाद अब अगर आप कहो जीसी फर्स्ट डॉट ओ, इट विल लिंक। अगर आपके पास और भी कोई ओ है, जैसे फन डॉट ओ आपने बनाया होगा ना, जो फन डॉट सी आपने बनाए थे ना, उसको Yes, ऑब्जेक्ट sir. कोड बनाया होगा, तो आप Yes. कहोगे यहाँ पे फन डॉट ओ या और भी कोई फंक्शन, वो आप सारे लिखोगे यहाँ पे, जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, Right, sir. वो सब लिंक होंगी एक ही में। Right. किसमें? Right, sir. अगर मैं यहाँ पे माइनस ओ कहूँगा तो फिर मैं उसका नाम लिख सकता हूँ कि बाया तथा नाव आउटपुट या रिजल्ट या क्या, ठीक है, आउटपुट डॉट फॉर एग्जाम्पल थवस बह EXE आउटपुट डॉट, या ये बने मेन एप्लीकेशन, ये बने मेन ऐप डॉट EXE थवस बह नाव, ठीक है। या sir. अगर मैं कहें लेख तेल करी पाने, ये करी तेले Fine. बह कर एंटर, एम क्या बनो A डॉट आउट, Out. A dot out. ये छुन तुझे भी शायद A डॉट आउट वो मैं ये लेखुन जरूरत है कि लिखित ऐप डॉट EXE था मैं ऐप डॉट EXE, मगर यह A डॉट आउट ना यह एग्जीक्यूटेबल, ये क्या है Executable. अत मे कह, यह सॉफ्टवेयर, यह ऐप तुज, यह सॉफ्टवेयर एंडस पे रन ग, डू यू अंडरस्टैंड? Right, sir. सो ये जो स्टेप मैंने किया GCC लास्ट में मैंने लिंक किया, अब इसको रन करना है मुझे, A डॉट आउट को क्या करना है, रन। Run. अब रन कैसे करूँगा, मगर यहाँ एरर इतनी माई फंक्शन कर एरर एरर ना, सो सो वी हैव टू रन इट अगेन है, बेसन भी माई फंक्शन ताम बंद ना हुत मस, Yes, sir. है ना? बनाओ सर ये कंपाइलेशन करें ना था। वो करेंगे ना, मल्टीपल फाइल सिखाऊंगा ना मैं इसके बाद, पहले ये कंप्लीट करेंगे, सिंगल फाइल वाला कंप्लीट करेंगे, इसलिए करो इस काम, इस करो नाइफ नाइफ सर आते हैं, इस करो गोनेस माइनस ई, गोनेस कुछ करो Minus E. इसको दो, ये है ना माइनस ई, Right, sir. बने फर्स्ट डॉट IS बने, ई के बाद क्या किया मैंने, उसके बाद minus S. कंपाइलर ही ना, कंपाइलर आएगा वो बनाएगा असेंबली कोड, Assembly. तो बन गया हमारा असेंबली कोड, है ना, फर्स्ट डॉट एस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन आएगा, Object code. Minus. हाँ सी, माइनस C. सी से वो ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, फर्स्ट डॉट ओ बने फर्स्ट डॉट ओ, ठीक है। अगर तो ये हटाइए, एक मिनट इसको डिलीट करेंगे, आपको समझ आएगा फिर से, लेट अस डिलीट इट, कोटा नहीं करेंगे, लेट अस डिलीट ऑल अदर गाइस टू मेक इट। सर सपोज सर अगर अस फाइल आस ना सर बनाम मिसाल प्रीप्रोसेसर फाइल तो कंपाइलेशन फाइल असेंबलर फाइल तो सर अगर अस पत मेन कोडस का चेंज हुमन मन गसा सो रिफ्लेक्ट कि अच्छी तरह से सर बनाओ, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इशन की है ना, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा भाई, ये तो आपने बनाया ना उसका जो था, आपने प्रोडक्ट बनाया ना, ये जो आप ये बना रहे थे, ये आपने बनाया उसका, किसका, जो फाइल थी, तो अब उसमें कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये तो आप इसमें चेंज कर रहे हो, मतलब फर्स्ट डॉट सी में आप चेंज कर रहे हो, अब सोर्स कोड में चेंज कर रहे हो, लेकिन इस सोर्स कोड का आपने बनाया ना वो एग्जीक्यूटिबल या कुछ, यस सर, तो उसमें मत दिखाएगा, आपको नया से करना पड़ेगा, मैं करा इसमें अलग अलग करा, वी हैव ना ऑल इन वन प्लेस, यस सर, शायद कहेंगे बिछावा ही पढ़ना खतर, हम थोड़ी ना ऐसे करेंगे, ये मैं सिखाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है, कभी कभार लगता है ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में, क्योंकि बिकॉज यू आर टारगेटिंग इंटरव्यूज़ ना, Right, sir. सर अच्छी बॉडी सेट उसमें सर एक कस ये सारी वुचान गोडनिक फिर, हालांकि यह गोडनिक दुआ, हालांकि दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज टू बी टॉट, राइट? Right, sir. Anyways, let us do it again, let's clear it so that you will tell me. Let us do it firstly. I say clang Minus E. minus e, very good. Now I use clang, huh? Right. किसको पकड़ेंगे, सी First dot C. किस में कन्वर्ट, First dot I. माइनस ओ से किस में डालेंगे, First dot I. फर्स्ट डॉट आई में, ठीक है, बन गया फर्स्ट डॉट आई, यस सर, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, Minus S. Assembly माइनस code. एस, यस माइनस एस, वेरी गुड, कैपिटल एस, हाँ, फर्स्ट डॉट आई, किसके ऊपर करेगा, ये कौन है, ये प्री प्रोसेसर कोड है, यस ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये लिख भी सकते हैं, ये खुद ही करेगा, ये खुद करेगा, क्या बनाया इसने, असेंबली फर्स्ट डॉट एस, बनाया, असेंबली, यस सर, असेंबली बन गया, अब क्या करना है, सी लैंग माइनस सी, वेरी गुड, माइनस Minus स्मॉल सी, कौन सा, फर्स्ट डॉट, जो ये First dot असेंबली कोड है, S. इसको क्या Right, बनाएगा, ऑब्जेक्ट कोड बन गया, ऑब्जेक्ट कोड अब, है ना, Right, sir. क्या ये रनेबल है, नहीं है, अभी नहीं, sir. लिंक करना पड़ेगा, सी लैंग बोलो, CC बोलो या GCC बोलो, जी जनाब, किस में करेंगे, First dot O. सिंपल लिखेंगे, फर्स्ट डॉट जो मेरा ओ है जनाब, उसको आप
काम करो और वो क्या बनाएगा, द ऐप, द सॉफ्टवेयर, दैट इज ए डॉट आउट, दैट इज ए डॉट। अब इसको रन करना है, अब इसको सीधे इसको कंपाइलर जी सी सी लैंग सी कुछ नहीं करना है, ये रनेबल है, इसको रन करो, ठीक है। इसके क्लिक से इसका डबल क्लिक या कमांड अगर मैं यू कमांड ना टेक्स्ट लाइन सॉफ्टवेयर, ये कमांड लाइन सॉफ्टवेयर, तो इसको सीधे इसका नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पाथ बतानी पड़ेगी कि है कहाँ पे। मैं कहूँगा डॉट मीन्स करंट फोल्डर, डॉट मीन्स क्या, अगर यह आसे बे कुन फोल्डरस मज सह अत बैक गो डबल डॉट गो बस ब्रोह गोमुत, से फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है उसका नाम है फोल्डर 1, उसके अंदर है फोल्डर 2, अगर मैं खुद फोल्डर 2 में हूँ और सॉफ्टवेयर फोल्डर 1 में है तो मैं कहूँगा डबल डॉट, यानी पीछे वाले फोल्डर में, राइट सर। क्योंकि ये करंट फोल्डर में है ना, तो ऐसे डॉट मीन्स रूट, मीन्स जहाँ पे मैं हूँ उधर ही जा, स्लैश नाम क्या है उसका फाइल का, a dot out, so it's printing now, it's working fine, right sir, got it। so अगर मैं ऐसा कर दूंगा यहाँ पे कि मैंने इसको कहा कि सी लैंग जो फर्स्ट डॉट ओ है ना, माइनस ओ माइनस जीरो नहीं डालना, माइनस ओ मीन्स क्या, वो आउट बनाओ, राइट सर। ऐप डॉट ई एक्स ई, मैंने नाम क्या रखा, भाई ये मेरी ऐप है, तो क्या इसने ऐप डॉट ई एक्स ई बनाई, यस सर। तो ऐप डॉट ई एक्स ई और ए डॉट आउट में कोई फर्क होगा, नो सर, नो फर्क कोई नहीं होगा। इफ आई हैव टू रन इट, डॉट स्लैश डॉट मीन्स करंट फोल्डर, और नाम क्या है इसका, ऐप डॉट exe, इट्स वर्किंग अगेन द सेम, राइट। सो ये जो ए डॉट आउट बनाता है ये डिफॉल्ट नाम रखता है इसका, सो यू कैन चेंज ए डॉट आउट से ना आसपास कुछ कोड आसे, एग्जीक्यूटेबल कोड, मशीन कोड, इनफैक्ट आपका मशीन कोड ओ में भी है, जो सर सो है कोई पूछे कुछ कोड से एग्जीक्यूट कर सर, अगर ये अगर आप देखोगे ना वो थोड़ी समझ आएगा इसको, ये तो मशीन कोड है ना, जीरोस एंड वंस है। सर अगर यस मज फर्स्ट डॉट ओस मज जीरोस एंड वंस, ए डॉट आउटस मज तो जीरो एंड वंस, सर इसका हकन फर्स्ट डॉट ओ एग्जीक्यूट करे, क्योंकि इसमें होगा ना आपको बाकी चीज़ें, लाइब्रेरीज, दूसरे फाइल्स, वो पहले लिंक करनी पड़ेगी, वो पहले लिंक करनी पड़ेगी ना, जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, ठीक है, वो आपको पहले लिंक करनी पड़ेगी आपको, चूँकि सिंपल ही फाइल था, फर्स्ट डॉट ओ जो था वो एक ही फाइल थी, लेकिन फिर भी इसको जो आपका std.h है उसमें से कुछ फाइल्स हैं जिनको उसने कॉल की है, वो लिंक करनी पड़ती हैं, क्योंकि सी जो आपका है ना, जब आप प्रिंट करते हो, जैसे प्रिंट एफ, आपको लगता है ये सिंपल है, ये सिंपल थोड़ी ना है, भी प्रिंट एफ थोड़ी फंक्शन है, कुछ है उसमें, लाइब्रेरीज आपको है, डिवाइस ड्राइवर्स, उनका सोर्स कोड है ना, वो ऑटोमेटिक बनता है। तो सर std.h में अगर सपोज 10 फाइल है, हमारे काम की इस प्रोग्राम में खाली प्रिंट एफ फाइल है, तो ये उधर से बाइट कोड में खाली प्रिंट एफ की फाइल को लिंक करेगा, मगर प्रिंट एफ को पीछे से आपको लाइब्रेरी ज़रूरत है जो डिवाइस ड्राइवर ऑफ द मॉनिटर के साथ काम करेंगे, तिमन तिहुन ते गछ ना आसन एग्जीक्यूटेबल, सो छना लिंक करनी आत सत, राइट, सो गछ न तोताम लिंक, सो छ अलग सोर्स कोड यमा, क्या छ तिहुन छ अलग डॉट ओ, तिम छ यासी लिंक करने, मगर सो छ हावान आस यत के, बिकॉज दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सो छ इंट्रिंसिक, क्योंकि सो छ जवाब दिवान ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट हैज़ टू लिंक, बट वी कैन डू इट ऑफ आवर ओन, वी सी कि मे फन डॉट सी छ में इसकी चीज़ें ज़रूरत है मुझे, तो तमा कैसे रन नहीं, हम इसमें फॉर एग्जाम्पल ये जो फन डॉट सी में है ना फंक्शन, ये इसकी मानो इसमें कॉल है, ये कैसा रन, ये तो तम यम सुन दिया पत कर यम से कंबाइन यथ ऐप डॉट ई एक्स एस में लिंक, फिर जाके एग्जीक्यूट होगा, वही लिंकिंग होती है ना, आपको समझ आई। तो सर कंपाइलर में छ कुनी बटन सु छ यम काम करन सोरे या पाने, एग्जैक्टली, ये जो बटन हमने एक दबाया ना, जो कोड रनर ने दिया, बिल्कुल बिल्कुल, या कोड रनर जरूरी नहीं है, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे ना यहाँ पे, अगर मतलब कंपाइलर में, अच्छा फर्स्ट शेयर द स्क्रीन, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे ना जीसीसी और फाइल का नाम, ये तो सारे काम एक साथ करेगा ना, क्लियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जीसीसी और फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट सी, ये करे सॉरी पाने, ठीक है, पहले मैं इसको डिलीट करूंगा यहाँ से, ए डॉट आउट बनाएगा फिर भी एग्जीक्यूट, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले इसको डिलीट करेंगे, ठीक है, मूव टू ट्रैश, ओके। अब आप फर्स्ट डॉट ये सी करोगे ना, मानो इसमें से कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है,
ये है, ये पकड़े ना हमने, आउटपुट पकड़े हमने, ठीक है। ये एस नहीं है, असेंबली कोड नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू GCC first.c कर। इसने ए डॉट आउट बनाया ना यहाँ पे, डायरेक्ट बन गई, यानी कि इमा इज नेम इज डायरेक्ट। नो इसमें प्री प्रोसेसर होगा, फिर असेंबली कोड बना होगा, फिर Yes, sir. असेंबली के Compile बाद ऑब्जेक्ट कोड बना होगा, फिर लिंकिंग हुई होगी। लिंक के बाद अब इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कैसे, ./a.out, A.out. बिंगो, रन। तो हम ये जो बटन है, यू शुड रन द दिमाग करित, ये क्या दिमाग, रन ये एडिशनल, ये इन 2 स्टेप्स का एक स्टेप है, यानी कि ये प्री प्रोसेसर भी करता है, ये कंपाइल भी करता है, असेंबली कोड भी करता है, फिर कंपाइल भी करता है, बनाता है उसको असेंबली कोड, उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड भी बनाता है, उसके बाद लिंक भी करता है, उसके बाद रन भी करके देता है। आनस, गॉट इट और नॉट? राइट सर। और फिर सर जावा और इसमें क्या फर्क है? जावा और इसमें ये फ़र्क है कि जब आपने ये a.out बनाया ना यहाँ पे, बिल्कुल दिस इज़ सर। वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट। खुद सा को स्क्रीन शेयर, यार स्क्रीन शेयर का बटन कहाँ गया? हाँ ये तो है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपने a.out जो आपने बनाया ना यहाँ पे, a.out जो आपने बनाया, बिल्कुल सर। ये किस मशीन के हिसाब से होगा? ये सर यहाँ ये से चला ना मैं इस मशीन में, ये चला ना मेरी मशीन पे। यस सर। अगर ये मेरी मशीन पे चला तो दैट मीन्स इट इज़ एज स्पेसिफिक टू द हार्डवेयर ऑफ दिस मशीन। मंथ में भी से ये आउट भाई चलाता है इंटेल पे, मैं आपको दूंगा, बोलूँगा चलाओ इंटेल पे, ये चलेगी? नो सर। ये ऐसा जो कल हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा हलवा बनाओ, और हलवा बनाओ और आपके घर में किचन है, उस हार्डवेयर से मैं हार्डवेयर पर चलाऊँ, हलवा कहाँ बनेगा? किचन के हार्डवेयर पे। और वहाँ आपको फॉर एग्जांपल, बाकी लोग कहाँ गए, वो तो बाकी है यहाँ से। सो फॉर एग्जांपल वो तो आपका ओवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हमने इसको कन्वर्ट किया कि भाई हीट इन ओवन, उसको ये बटन दबाओ, उसके बाद ये रखो, इसको प्रीसेट रखो, उसके बाद ये रखो, उस पर ग्रिल रखो, ये रखो। अब यहाँ पे जो है ओएस को फ़र्ज़ कीजिए उसके पास इंडक्शन है, राइट सर। जो a.out आपको मैंने बनाई आपके हार्डवेयर के हिसाब से, क्या वो इधर चलेगी ओएस के किचन में? नो सर। तो क्या करना पड़ेगा, नया a.out बनाना पड़ेगा। इसके असेंबलर को देखकर, जो इसका असेंबलर होगा इसकी मशीन का, वो देखेगा कि इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, उस हिसाब से कोड बनेगा a.out। तो यानी कि सी में आपको हर बारी हर हार्डवेयर पे अलग वर्जन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जावा के अंदर हम क्या करते हैं काम, स्क्रीनशॉट शेयर, नो सर। बाकी लोग क्या गए, वो सो गए, मैं चली में थी, वो तो भाग गए हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट। जो जावा काम करता है, जो सी आपका काम करता है कि आपका सोर्स कोड था, मतलब जो भी आपका था abc.c फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सोर्स कोड है, इसको आपने exe बनाया ना, डॉट एग्जीक्यूटिबल कोड। यस सर। लेकिन ये एग्जीक्यूटिबल कोड किसी हार्डवेयर से, फॉर एग्जाम्पल इंटेल के स्पेसिफिक था, अगर आपका मैकबुक है M1 उसको अलग बनाना पड़ेगा, M2 उसको अलग exe बनानी पड़ेगी अपनी, जो कि इसके हार्डवेयर के हिसाब से होंगी, ठीक है। अगर आपका AMD मशीन है उसको अलग बनाना पड़ेगा। जावा ने क्या काम किया, उसने बोलता है ये exe मत बनाओ आप यू राइट टू द वर्चुअल मशीन, यू राइट टू व्हाट, एंड यू क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड एज अ बाइट कोड। चाहे आपका PHP हो, पाइथन हो वगैरह हो, वो सारे यही करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड बाइट कोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका था abc.java, ये उसका abc.class बनाएगा, दैट इज abc क्लास इज द बाइट कोड विच इज जनरल पर्पस। फिर क्या होता है कि जिस मशीन पे आपको ये आप लागू करना है, उस मशीन का अपना एक जावा वर्चुअल मशीन होता है, या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर JVM होता है, गार्बेज कलेक्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है JVM, वो इस बाइट कोड को पकड़ता है और जो ना असेंबली ने कन्वर्ट किया हार्डवेयर में, वो ये JVM करता है कन्वर्ट इस मशीन के हिसाब से। इसी तरीके से M1 को अपना JVM होगा, ठीक है, वो कन्वर्ट करेगा इस बाइट कोड को इस हार्डवेयर के हिसाब से। इस मशीन को अपना JVM होगा, वो इस मशीन को, इस कोड को कन्वर्ट करेगा अपने इस मशीन के हिसाब से। और कुल मिला के जो एज ए डेवलपर जो है, आपको एक ही बाइट कोड बनाना है,
आपको मल्टीपल वर्जन्स नहीं बनाने हैं. सो यू हैव टू राइट वंस एंड रन एवरीवेयर. सो वो रहा. और सर रन ये एनीवेयर. बाइट सर यूसी बाइट कोड छासन ये किस में होता है, ये असेंबली में होता है कि मतलब यह छ आसान मैशीन कोड आसान. यह छ आसान मैशीन कोड. यह छ आसान zeros and ones मगर यह छ आसान मैशीन न्यूट्रल कोड. यह छ आसान मैशीन इंडिपेंडेंट कोड. यह छ आसान हार्डवेयर स्पेसिफिक क्या. यह छ आसान जनरल पर्पस. मतलब फॉर एग्जाम्पल समझावत से मैंने आपको हलवा बताया ना. बाइट कोड वन हीट. सो वन हीट ऑन इंडक्शन. सो वन हीट ऑन अवन क्या. मगर पत JVM वुच ना योर मैच इंडक्शन सह कर हीटस कन्वर्ट इनटू हीट इनटू द अवन. आया कत समझ. ये पत ये इंटेल JVM वुच ये इंस्ट्रक्शनल आर्किटेक्चर वो इसको कन्वर्ट करेगा अपने हार्डवेयर के हिसाब से. यानी कि एज ए प्रोग्रामर हमें वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वो JVM अपना वो आर्किटेक्चरली डिपेंडेंट कोड बनाएगा. हम अपना आर्किटेक्चरली न्यूट्रल कोड बनाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सर, थैंक यू. I think that's all for today. Yes, sir. We are recording this. We will put it on a YouTube and you can see it. This was the first day of the C programming. I hope other guys will join also. Right? Inshallah. We'll stop recording and we'll talk a bit.